Good evening all. This is already all I have discussed. I have started with IR spectroscopy. I have given the introduction of IR spectroscopy. Again, I am telling you the IR spectroscopy means when the range of the infrared radiation is from zero point 0.8 micrometer to 200 micrometer. 0.8 to 200 micrometer when it comes to infrared region. In infrared region, what is going to happen? In infrared region, molecular vibration. So I have told you how the vibration occurs. Like suppose if this is a molecule in which the two atoms are attached through the bond. So what is going to happen? These atoms vibrate, oscillate at their own position. This is called vibration of molecule. And uh, during vibration, the bending and the stretching, the two things happen. And what is going to happen? They definitely, when the atoms just vibrate at their own position, they are having certain natural frequency. So they are having certain natural frequency. So when this infrared radiation is absorbed by the molecule, then the frequency of the applied infrared equal to the natural frequency of the molecule. Then that time the infrared radiation is absorbed by the molecule and you are going to get the different types of peaks. Each and every functional group having a specific type of peak. So that's why each and every molecule, each and every functional group has a different type of peak. So by that you can also come to know that which functional group is present. So this is I was telling you, when infrared radiation is absorbed by the molecule, the molecule start vibrating. Now, very important. Character of vibration. The fundamental modes of molecular vibration can be classified in two parts. जो वाइब्रेशन होता है मॉलिक्यूल का वो दो तरह का हो सकता है, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग. स्ट्रेच माने खींचना, बेंडिंग माने मोड़ना. ध्यान से समझना, दो फंडामेंटल वाइब्रेशंस होते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन. Now, one by one, I am going to discuss stretching vibration. They involve movement of atom within the same bond axis. Bond axis change नहीं होती, such that the bond length changes only without any change in bond angle. कल explain किया था. अच्छा, क्या है इसमें खास बात? Symmetrical molecules like carbon dioxide, okay, this is symmetrical, are not IR active. जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंफ्रारेड एक्टिव नहीं होते बिकॉज नो चेंज इन द डायपोल मोमेंट इज ऑब्जर्व्ड अपॉन स्ट्रेचिंग. अगर इनकी बॉन्ड लेंथ चेंज होगी तो बॉन्ड लेंथ चेंज होने से इनके बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क पड़ता है. देखो इसका बॉन्ड एंगल 0 होता है, आपने 12th में ही पढ़ा होगा. तो ये कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव, दिस इज स्लाइटली नेगेटिव. तो अगर डायपोल का डायरेक्शन हुआ तो क्या होगा? ये इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, द डायपोल कैंसिल. तो इसमें डायपोल मोमेंटम कितना आता था? म्यू इज इक्वल टू 0 आता. इसका डायपोल मोमेंट 0 आता है. यानी कि अगर इफ देयर इज एनी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल then it is not going to absorb the infrared radiation. The reason being because there will be no change in the dipole moment. Stretching से dipole moment change नहीं होगा. Dipole moment का change होना जरूरी है. Non-cyclic system shows n-1 stretching vibration because these vibration describe one directional motion. जो non-cyclic system होते हैं उनमें n मतलब number of atoms कितने हैं, n-1 stretching होती है vibrations. ठीक है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी अगर अभी समझ नहीं आएगा. तो नाउ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन. फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन दो तरह के, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है
बेंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है। डायपोल मोमेंट क्या क्या होना चाहिए, पहली बात ना, अगर इंफ्रारेड रेडिएशन हो रहा है तो उसका क्या क्या होता है। पहली बात स्ट्रेचिंग या बेंडिंग होता है। दूसरा क्या होता है, dipole moment and symmetry. The bond in a molecule can absorb infrared radiation only when there is a change in dipole moment. ये खास बात है। There is a change in dipole moment due to electric field of IR radiation. अगर IR radiation absorb किया गया है और मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट चेंज हो रहा है, डायपोल मोमेंट अगर चेंज होगा तो ही इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, तो नहीं। इसका मतलब दो कंडीशन है आईआर एब्जॉर्ब करने की। पहली कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल की जो खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो अप्लाइड इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी से मैच होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, there should be a change in the dipole moment of the molecule after the absorption of infrared radiation. If there is a change in dipole moment, then infrared radiation will be absorbed, otherwise not. The electric charge, positive and negative on the atoms of the molecule, experience force in opposite direction. As a result, spacing between the charge atom of the molecule also decreases. Okay? होता क्या है कि when you are placing the molecule in infrared radiation, electromagnetic field में आप रख रहे हो किसी भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज एटम, तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल चेंज होगा। These charged atoms, when vibrate, absorb IR radiation. If the rate of vibration in change atom is fast, they exhibit intense absorption of radiation and vice versa. तो लगे कि अगर जो वाइब्रेशन है चार्ज एटम का वो बहुत फास्ट है तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस दिखाई देते हैं। Vibration transitions C double bond O NHOH etc. occur to change in dipole moment, thus absorb IR radiation. ठीक है, इसका मतलब क्या है, important is this, for infrared radiation there should be a change in the dipole moment. Symmetrical diatom molecules, symmetrical diatom जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो सिमेट्रिकल है, यानी होमो मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होती हैं इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होता है, इसलिए ये आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करते। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मतलब एक जैसे एटम के मॉलिक्यूल जब बने होते हैं तो उनमें इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि उनको कोई डायपोल मोमेंट ही नहीं होता, जीरो होता है। Even though symmetrical compounds such as ethylene exhibit dipole, they do not show any change in dipole moment upon stretching. If the symmetry of compound is destroyed, अगर कोई भी symmetrical है molecule, तो भी dipole moment change नहीं होगा. If the symmetry of the compound is destroyed, it exhibits change in dipole moment and strong IR radiation absorbed. For example, ethylene bromethylene. अगर molecule की symmetry change हो जाती है, asymmetrical हो जाता है, तो उसमें इंफ्रारेड, इस मतलब मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल में अगर डायपोल मोमेंट नहीं है, मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती, तो आईआर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। If the symmetry of the compound is destroyed, we may explain earlier, substitution of bromine for hydrogen of ethylene destroy the symmetry and stretching of the double bond exhibit change in dipole moment. जैसे यहाँ ब्रोमोथाइलिन है तो इसमें क्या होगा, डायपोल मोमेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसके समय। When the polar molecule is exposed to IR radiation, stretching vibration along the internuclear axis of polar bond are seen. Hence, the electron distribution changes and changing dipole moment. Molecular vibrations are of two kinds. दोबारा वही आ रही है, stretching and bending. अब ये बहुत ध्यान से करना। Stretching vibration is again divided in two parts, symmetrical and asymmetrical. बेंडिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया है, इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन में दो टाइप होते हैं, सीजरिंग एंड रॉकिंग। आउट प्लेन में दो टाइप होते हैं, बैगिंग एंड ट्विस्टिंग। हम सारे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम देते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन अलोंग द लाइन ऑफ बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग। ठीक है, ऐसे इधर जाना या इधर जाना, इधर जाना या इधर जाना। चेंज इन बॉन्ड लेंथ होता है इससे, या तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है या बॉन्ड लेंथ घटती है। Symmetrical stretching. Two bond increases or decreases in length simultaneously. या तो देखो ये बाहर से ये बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, या तो ये एक साथ बाहर जाएंगे सिमेट्रिकली, या एक साथ दोनों अंदर जाएंगे, यानी या तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या बॉन्ड लेंथ घटेगी। Either it will increase or it will decrease, but साथ साथ होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। या तो ये बाहर जाता है या एक साथ अंदर जाएगा, या तो ये
ऐसे जाता है, ये वाला बॉन्ड ऊपर, ये वाला बॉन्ड भी ऊपर, या ये वाला बॉन्ड भी नीचे और ये वाला बॉन्ड भी, यानी कि या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये सिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल, वन एटम अप्रोचेस टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम while the other departs. एक अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है, यानी कि एक की बढ़ रही है, एक की घट रही है. ये अंदर जा रहा है तो ये डिक्रीज होगी और ये बाहर जा रहा है तो ये इंक्रीज होगी. एक बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है, ये एसिमेट्रिकल. ये क्या है? दिस इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग. खास बात क्या देना है, इसमें बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता. क्या चेंज होता है? ओनली बॉन्ड लेंथ चेंज. इसमें इन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. asymmetrical, one bond length increase, other decrease. ये मैंने आपको बताया. Next is bending, vibration और oscillation not along the line of bond. यानी एक्सेस पे नहीं होता. इसका मतलब क्या होगा? बॉन्ड एंगल चेंज होगा, डिफॉर्म होती है, चेंज होती है शेप, बॉन्ड एंगल चेंज होती है. इन प्लेन बेंडिंग, इन प्लेन बेंडिंग का मतलब होता है कि जैसे ये प्लेन है, ठीक है, अब इस प्लेन पे, ये प्लेन है, इस प्लेन पे दो बॉन्ड है ऐसे, तो प्लेन के अंदर ही होगा जो भी चेंज होगा, ठीक है, प्लेन से बाहर नहीं जाएंगे. देखिए इन प्लेन बॉन्डिंग, जैसे सिजरिंग, सिजर माने कैंची, यानी ऐसे अंदर बॉन्ड अंदर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं एक साथ, बाहर जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिजरिंग. पर ये प्लेन के अंदर ही हो रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, अंदर जा रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो. रॉकिंग, दूसरा होता है क्या? मूवमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन. पहले वाला क्या था? अपोजिट डायरेक्शन में था, एक इधर आ रहा है, ये भी अपोजिट आ रहा है, अरे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. और यहाँ पर क्या हो रहा है? इससे समझ में आएगा शायद. ये सिजरिंग है, ये रॉकिंग है, ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर जाएगा या इधर जाएगा, दिस इज कॉल्ड रॉकिंग. रॉक, दोनों बॉन्ड सेम डायरेक्शन. सिजरिंग मतलब ऐसे. दिस इज कॉल्ड रॉकिंग. ये इन प्लेन, आउट प्लेन बेंडिंग. आउट प्लेन बेंडिंग मतलब, आउट प्लेन बेंडिंग अगेन ऑफ टू काइंड, बैगिंग एंड ट्विस्टिंग. बैगिंग एंड ट्विस्टिंग, देखो बैगिंग का मतलब क्या है? टू एटम्स मूव टू वन साइड ऑफ द प्लेन, दे मूव अप एंड डाउन. क्या करते हैं? जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो मॉलिक्यूल या तो ऐसे ऊपर की तरफ छलांग मारेगा या नीचे, आउट ऑफ द प्लेन. इससे एक सेकंड, I'll show you with the help of pencil. जैसे ये है, ठीक है, तो अगर मान लो एक प्लेन है, तो अगर ये ऐसे ऊपर जा रहा है बॉन्ड, तो क्या हो रहा है? दिस इज कॉल्ड बैगिंग. ऊपर जा रहेगा, या तो मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बैगिंग. ट्विस्टिंग मतलब एक ऊपर एक नीचे, लाइक दैट, दिस इज कॉल्ड ट्विस्टिंग. बट प्लेन के आउट ऑफ द प्लेन है, प्लेन में नहीं हो रहा है, ठीक है, दिस इज ट्विस्टिंग. बैगिंग ऐसे ऊपर एक साथ गया, नीचे साथ गया, हो गया. अच्छा, तो इन प्लेन का मैं बता देती हूँ एक बार, अगर इन प्लेन का समझ में नहीं आया. रॉकिंग, जैसे इन प्लेन सिजरिंग, प्लेन के अंदर ही हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सिजरिंग, ठीक है. और बैगिंग में ऐसे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, सॉरी, रॉकिंग. So in this way, I have explained you blending vibration, in plane scissoring and rocking, out plane bagging and twisting. Okay, or stretching, symmetrical and asymmetrical. So now, this is all I have explained. Next part is calculate. ये सबसे important.
कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड। किसी भी मॉलिक्यूल में हमें वाइब्रेशन मोड्स पता करने होते हैं, कितने मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन मोड होते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल कंप्लीटली। फॉर एन एटम मूविंग इन 3 dimension space, its degree of freedom is 3 dimensional space. So if we have molecule made of n atoms or ions, the degree of freedom will be 3n. The degree of vibrational modes for a linear molecule, अगर molecule linear है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है ना, उसकी शेप 180 डिग्री एंगल होता है, अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3n-5, n नंबर ऑफ एटम्स। अभी कैलकुलेट करके देखिए, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन नॉन लीनियर मॉलिक्यूल 3n-6। ये याद रखना, लीनियर के लिए 3n-5, नॉन लीनियर के लिए 3n-6, ठीक है। n is equal to the number of atoms within the molecule of interest. The following procedure should be followed when trying to calculate the number of vibrations. Determine if the molecule is linear or non-linear. सबसे पहला काम होता है VSEPR थ्योरी से हम पता करते हैं मॉलिक्यूल लीनियर है नॉन लीनियर है। आपके कुछ डेफिनेट मॉलिक्यूल ही हैं जो सिलेबस में हैं, वो आप एक बार बुक में देखोगे पता चल जाएगा, ठीक है। वाटर, यही है एग्जाम्पल जो आपके याद रखते हैं, water, ammonia, methane, this is ethane, this is nitric oxide, this is carbon dioxide. अब इसमें से लीनियर मॉलिक्यूल में कौन कौन आता है? खाली NO एंड CO, बाकी सारे नॉन लीनियर होते हैं। यानी कि इसमें कौन सा अप्लाई होगा फॉर्मूला? 3n-5। यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? 3n-6। ये फॉर्मूला। अब देखो मैं आपको एक कैलकुलेट करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ वाइब्रेशन इन वाटर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? थ्री एन माइनस सिक्स। अब इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 3 है ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी क्या हो जाएगा? 3 into 3, this is I am explaining about water which is non-linear, minus 6, so this is going to be 9 minus 6, so it is going to be नंबर ऑफ डिग्री ऑफ वाइब्रेशन कितने होंगे वाटर में? 3। अब देखो CO2 का एक्सचेंज, CO2 लीनियर है, यानी अप्लाई क्या होगा फॉर्मूला? 3n-5। ओके, नंबर ऑफ एटम्स CO2 में कितने हैं? 3, 2 ये और 1 ये, सो 3 into 3 minus 5, 3 3 जा 9 minus 5, so this is going to be 4। इसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 4। इन दिस वे, अब जैसे इसमें नंबर ऑफ एटम कितना होगा? 2, तो 3 into 2 6, 6 minus 5 1, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। इस तरह से कैलकुलेट, जैसे ये है, इसमें टोटल कितने हो गए? 8, 3 into 8 24, 24 minus 6, ठीक है। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पता कर सकते हैं, तो ये कैलकुलेट करने। नेक्स्ट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रीजन ऑफ IR स्पेक्ट्रम। जो IR स्पेक्ट्रम बनता है उसको एक्चुअली 2 नहीं 3 रीजन में डिवाइड करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। IR spectra is divided into 2 regions. Today the strength is very less, 27 participants only, and this part is very important. As you all the students have told me, you were not able to understand the topic through YouTube which I have shared, so that's why I am taking the session for this unit. So I think the students should also be very much aware of this thing, that if the teacher is coming, taking, giving the time for the session, so they should also be regular, punctual. If simply you are sitting at home, if you have to spend 30 minutes only, you can't be. Okay,
Regions of IR spectrum. IR spectrum is divided into two regions. देखो इसमें क्या है? Region 4000 से 1500, ये वेव नंबर का दे रखा है, 4000 to 1500 centimeter. It consists of absorption band of vibration states of various types of bond present in the molecule. The important groups accounted for include A, the presence of, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ये तीन रीजन्स होते हैं इसमें. फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड नॉर्मली, एक सेकंड में आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ जैसे होगा ये फिंगर, ये देखो फंक्शनल ग्रुप रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन और एक एरोमेटिक रीजन. पहला जो है 4000 टू 1300 सेंटीमीटर इनवर्स, 4000 टू 1300 सेंटीमीटर इनवर्स. यहाँ तक कौन सा रहता है? फंक्शनल ग्रुप रीजन. यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है, ये वाला. और यहाँ से लेके यहाँ तक का 1400 या 1300 से 600 तक का पार्ट ये फिंगरप्रिंट रीजन. ये फंक्शनल ग्रुप रीजन है, ये फिंगरप्रिंट. Fingerprint region. This region accounts for many absorption of band characteristics of functional groups. Since number of sharp bands of varying intensities are encountered, close examination is needed. This region is useful for identification of compounds since no two compounds can have identical IR in this region. कोई भी दो कंपाउंड अगर अलग अलग हैं तो उनका सेम फिंगरप्रिंट नहीं आ सकता. Region present below 1500 centimeter show absorption band due to the bending, vibration, stretching, vibration. Region less than 1250 consists of complex vibrational rotational spectra of complete molecule. Fingerprint region is further divided into three regions: 1500 to 1350. The presence of double peak near 1380. ये आपको मैं functional group region. The most common application of IR spectroscopy is perhaps to identify functional groups. This is possible because different functional groups vibrate at different frequency. The frequency of vibration, however, depends on addition factors such as delocalization of electron. ये सब पे डिपेंड करता है. तो एब्जॉर्प्शन 400,000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स जो है ये फंक्शनल ग्रुप रीजन है. और ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में ये वाला फिगर, ये हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ये फिंगरप्रिंट. ठीक है. Now instrumentation. IR spectrophotometer. IR spectrophotometer सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, वो आपके सिलेबस में है. ठीक है. मैं आपको ये दिखाती हूँ. इसमें भी क्या करते हैं, देयर इज अ इंफ्रारेड सोर्स. अब यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट भी पास टू द सोडियम क्लोराइड प्लेट्स. ये जो प्लेट्स बनी होती हैं सैंपल इसमें रखते हैं वो सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड की बनी होती है. ठीक है. यहाँ डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करते हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व होती है वो ऑब्जर्व करते हैं. ये देखो यहाँ से ये IR सोर्स है. ठीक है. यहाँ ये मिरर लगा रखा है, रिफ्लेक्टिंग मिरर. ये डबल बीम वाला दिखा रखा है इसमें. ये रेफरेंस है, ये सैंपल है. और यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करते हैं यहाँ के थ्रू, ये मोनोक्रोमेटिक के थ्रू. और यहाँ से क्या करता है, ये डिटेक्टर डिटेक्ट करता है. IR सोर्स में क्या क्या यूज कर सकते हैं इंफ्रारेड सोर्स? नर्स ग्लोअर, ग्लोबल, सिलिकॉन कार्बाइड या टंगस्टन फिलामेंट. टंगस्टन फिलामेंट, स्पेशल हाई प्रेशर मर्क्यूरी आर्क लैम्प, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर. ये सारे हैं जिनको कि हम ऐसा IR सोर्स यूज कर सकते हैं. सैंपल्स है ये खास जिसमें हम कंपाउंड रखते हैं, केमिकल रखते हैं जिसको पढ़ना होता है. मेड अप ऑफ एल्कली, ये खास बात है. ये सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड का बनता है. क्यों क्यों बनाता है? एक्वस सॉल्वेंट कैन नॉट बी यूज, दे डिसॉल्व एल्कली हैलाइड. अब इसमें ध्यान रखना है कि जिस सॉल्वेंट में हम कंपाउंड को बनाते हैं, मिक्स करते हैं, वो एक्वस नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये जो है ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे. इनको क्यों करते हैं? इनको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये IR रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करते. ठीक है ना. इनमें से थ्रू भी पास होके जाने देते हैं आराम से.
Only organic solvents like chloroform is used. IR spectroscopy has been used for the characterization of solid, liquid, gas. तीनों फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं. Most flexible system for analyze all three states. Neat analysis of liquid. Palette form में solid को हम palette form में यूज करते हैं. Palette मतलब flex की form में. Thin cell analysis of dissolved solid sample. यानी कि अगर हमें solid ऐसा है उसको dissolve कर सकते हैं किसी organic solvent में तो हम उसकी thin cell बना लेते हैं. लॉन्ग सेल अगर यूज करते हैं तो एनालिसिस ऑफ गैस कर सकते हैं. इस तरह से ये पिक्चर इसमें प्लेस कर. These plates are made up of sodium chloride, potassium chloride, must be stored in water-free environment. मोनोक्रोमेटर. मोनोक्रोमेटर का क्या होता है? सिंगल वेवलेंथ लाइट होता है. कन्वर्ट पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू मोनोक्रोमेटिक. ये तीन तरह के हो सकते हैं. मेटल हैलाइड प्रिज्म, सोडियम क्लोराइड प्रिज्म एंड ग्रेटिंग. ये प्रोसेस है किस तरह से करते हैं. डिटेक्टर कन्वर्ट द रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. फोटो डिटेक्टर एंड थर्मल डिटेक्टर दो तरह के यूज करते हैं. Thermal detector. IR radiation on detecting thermal change. Active element is small as possible to maximize temperature change. When radiation ceases, the element return to ambient temperature. Decay time is determined. ये सब इतना important नहीं है. मेन क्या है हम क्या क्या यूज कर सकते हैं. नाम याद रखने हैं थर्मल डिटेक्टर. पूरा डिटेल नहीं है ये, केवल आपको नाम पता रहे. थर्मोकपल, थर्मोपाइल, थर्मिस्टर, गोले डिटेक्टर, पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर. ये इलेक्ट्रिकल डिटेक्टर्स हैं जिनको यूज करते हैं. बाकी ये पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना. ये फोटोन डिटेक्टर इज नॉट इन योर सिलेबस. थर्मोकपल्स कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ जंक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल. डिटेक्टर्स में थर्मल, पायरोइलेक्ट्रिक, फोटो कंडक्टिंग. 10 minutes left. Thermocouple consists of pair of junction of different metal. For example, two pieces of bismuth fused to either end of a piece of antimony. The potential difference between the junction changes according to the difference in temperature. Okay. Pyroelectric. Single crystalline wafer of a pyroelectric material such as triglycerin sulfate. The properties of pyroelectric material are such that when an electric field is applied, electric polarization occurs. Pyroelectric detector have a fast response time. Photoelectric, such as mercury cadmium telluride detector, comprise of film of semiconducting material deposited on glass surface, sealed in an evacuated envelope. These detectors have better response characteristics than pyroelectric. तो better photoelectric है. Nurse blower है, ये आपको दिखाया है. इसको रहने दीजिए. This is not it. Now the last part is application of IR spectroscopy. Qualitative fingerprints check for identification of drugs, used for screening of compounds and rapid identification of carbon double monoxide group. It can be used to characterize sample in solid state. It can detect different crystal isoforms, water content measurement, application, analysis of urine and other biofluids जैसे यूरिया, क्रिएटिन, प्रोटीन. ये सब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिस्कस करते हैं. Used in non-invasive measurement of glucose. Glucose जो measure करते हैं इनहेल एक्सेल करते हैं और डिटेक्ट करते हैं, वो भी इस IR से करते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, determination of bland uniformity, determination of identification of polymorphic drugs. These all are used. Okay. So here your unit is complete. Now, whatever the doubt you have, just ask. It's very important chapter. Now, your work is just go through the chapter. Any doubt, then ask. Otherwise, now your homework. What you have to do? I've just created a Google Classroom for Division C and Division E separately. Division C and Division E separately. So now what you have to do? You have to upload your assignment on that Google Classroom. Okay. So first of all, yesterday number of you have not given me the attendance on WhatsApp. You have to give me the attendance on WhatsApp. Secondly, you have to upload your solved assignment of unit 3, 4, 5, 6 on Google Classroom. I have created
for division C and division E separate. Any doubt, then ask. Otherwise, I'm just ending today's session. Yes. No doubt. Today is the last class. Any doubt, then you can ask me personally. You can ask the question on WhatsApp. Now today the syllabus is complete on my side. Any doubt, can ask. Okay, I'm closing today's session. Thank you all. Stay safe. Stay at home. Okay. Definitely. Next, whatever it is regarding to the exam, it will be declared in the WhatsApp group only. But now, definitely, 100% you have to give your exam. I don't know what will be the mood, how it will be, when it will be, but 100% you have to give your exam. Already, I have covered all the 4 units on Zoom meeting, all the 4 units. Now your work is to just go through the units, solve the assignment. If you find any problem, you can ask on WhatsApp, you can call me anytime. Thank you. Stay safe. Bye.